I would like to extend a warm welcome to Manish ji, who have made it possible with us today despite his busy schedule. Welcome, Manish ji. Welcome to the webinar. On behalf of all my participants and my team Udmita Helpline, I really like to welcome Manish ji to start with the webinar today with us. And I'm sure all of you are all ready. Let us find some solutions regarding the recovery of delayed payment through our expert. He's the man, he's the expert in corporate affairs, and he's going to share his valuable insights and his expertise. So all the best to each one of you. All set with Manish ji. Manish ji, please, you can start the webinar. Thank you, ma'am. This is Advocate Manish Alak, and I've been, me and my team is specialized in money recovery cases only, and mostly corporates, which includes every sort of recovery, means from if you have check, if you don't have check, from money suits or from MSME. So without wasting time, let's start our presentation. So, dear friends, very good evening, very warm good evening. And this webinar, which we are going to take, is about effective strategies for payment of money recovery through MSME Act 2006, through check bounce and Order 37 summary suits. So, we are going to see what are the options available and how we can proceed in it. First, and in this webinar, what we are going to have is, first of all, what are the emotional, physical, and financial stress which is being caused to you when your buyer or any person does not pay you because of non-payment. Second, we are going to explore all the legal options available for traders, manufacturers, trader it is written, or service providers. Means if you are a businessman and if you are either you are MSME or not, does not matter, but how you can take back your money from buyer, we are going to discuss the ways in it. Third is knowledge and strategies to get back money with different tools, and what are the tools which are useful in it, which this we are going to discuss. Calculation to convince your buyer to pay your dues. See, after all, we are going this way or that way. Our main motive is to get our money back, and our client, our buyer is going to give us money only when he is going to calculate all those things that in particular this situation, in a particular litigation, if he is going to face, he is going to have much more financial liabilities, and still he will be having that legal liability. So we are going to calculate that, and that is for the purpose that we are going to tell that buyer that this is the calculation, better we should settle it, or you are going to pay much more later. And above all, we are going to see some sample demand notice for MSME Act for check bounce, the sample of it, how you can prepare it, invoices and agreements, sample invoices and agreements. So friends, I'm Advocate Manish Alak. My qualification is LLB, MBA with specialization in finance and management. My total work experience is more than 20 years, and currently I'm having 100 plus MSME cases running all across India. I have a YouTube channel as well, in which I have 100 plus videos on money recovery, and those videos are thoroughly on money recovery, and that they are on check bounce, that is section 138 of Negotiable Instrument Act,
Order 37, it is a money recovery summary suit. We are going to discuss what that is. And above all, MSME Development Act 2006. And we have discussed 100 plus case laws decided on these particular money recovery suits. So, first of all, personal reason why I choose to expertise in money recovery. First of all, anyone who wants to have any question till point, you want to know anything, or should I proceed further? Fine. So what is the personal reason why I choose to expertise in money recovery? See, I belong to a service class family. मेरे parents जो थे, they are service, both were government employees. और मेरे ब्रदर ने एक बिजनेस शुरू किया था शू मैन्युफैक्चरिंग का. तो हमें इनिशियली पता नहीं था, हमने उनको उसको इन्वेस्टमेंट दी थी, बट अगेन उस द स्टोरी गोज रॉन्ग वेयर हिज पेमेंट्स गॉट स्टक इन मार्केट, और वो इतना हो गया, प्लस द एक्सपेंसेस, रनिंग एक्सपेंसेस वर मच मोर, जो कि उस वक्त raw material, rent, electricity, all those. So around, and he has taken loan from outside money lender, jiska interest was around 5% per month. So ऐसा करते करते हमें 50 lakhs का हमारे ऊपर हो गया था, हमारी फैमिली के ऊपर हो गया था. एंड आई रिमेम्बर दोज डेज वेयर माई फादर, माई मदर, in fact me also, apart from my brother, were very in tremendous tension. I know हमारे द्वार पे मनी रिकवरी के लोग आते थे, कैसी कैसी धमकियां हमने झेली है. तो I have seen all those things. Then I was convinced, I just thought कि ऐसा हुआ क्यों. See, ऐसा कोई हर किसी को जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसको इतनी अकल तो होती है कि ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ये रॉ मटेरियल हैं, और इतना मुझे प्रॉफिट होने वाला है. तो मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब आपका पैसा जो है वो टाइम से आपको वापस नहीं मिलता, और आपके जो खर्चे वो आपको करने पड़ते हैं, प्लस यू टेक मनी फ्रॉम आउटसाइड, जो मनी लेंडर्स होती हैं 3%, 4%, 5% पे जो देती है. तो वो जो एक सर्कल बन जाता है, वो ऐसा सर्कल बन जाता है, अगर उसको तोड़ा ना जाए तो वो एक टाइम पे फिर हमें एक्चुअली प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी थी. और फिर हमारी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वो हमने फिर 62 lakhs में हमने बेची थी. तो वी नो कि कैसा लगता है. तो और सिर्फ ऐसा ही नहीं, अगर आपकी पेमेंट टाइम से नहीं आती, आपको पर्सनल इश्यूज भी आते हैं, आपके बच्चों के ट्यूशन की फीस, आपकी खुद की हेल्थ, बीपी, शुगर, डिप्रेशन, बिजनेस में लॉसेस तो है ही, बिकॉज ऑब्वियसली आप अगर आप पेमेंट नहीं दे पा रहे तो यू आर गोइंग टू टेक लोन फ्रॉम बैंक और प्राइवेट मनी लेंडर्स. Again, that vicious circle will be there. So this particular webinar is going to help you in a sense. We are going to provide you solutions. One solution कि अगर एक नॉन पेमेंट हो गई है. सेकेंड इज कि what can you do कि आपकी पेमेंट जो है वो ज्यादा देर तक स्टक ना हो. So let's move further. See, अब मनी रिकवरी है, बिजनेस हो या पर्सनल, हम वो केस लेते हैं कि यू हैव चेक. हियर वी आर डिस्कसिंग बोथ द केसेस, बिजनेस एज वेल एज पर्सनल. इफ यू हैव चेक, देन यू कैन लॉन्च क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम of check bounce case, that is section 138 of NI Act. And apart from it, you can file a civil suit as well, which can be order 37 summary suit, or money recovery, means normal money recovery suit in court, district court,
or MSME MSME Facilitation Council, provided you are a manufacturing and services in services sector. See, if you are in manufacturing or services, then you have an option. Then you can file your case in MSME Facilitation Council. But if you are a trader, then you have to choose either to file Order 37 case or money recovery suit in district. And since you can file one criminal and one civil suit, so criminal, the check bounce is a criminal offense. So you can file two cases against one person or identity on same issue, that is money recovery. One is check bounce and other is civil suit. Now, in case you don't have check and you are in a business of manufacturing or services, then you have that option that you can file your case in MSME Facilitation Council, or you can file money recovery suit in civil court, district court. See, you can file either in district court money recovery suit or MSME Facilitation Council, because these both are of civil nature. You cannot file same suit in civil in both in two different identities. They have to be in different. So if you want to file one criminal suit, that may be 420 case or any other case, you can file it. But if you are filing civil suit, either you can file it on in MSME Facilitation Council or in normal district court money recovery suit. Moving forward, in case you don't have check and you are a trader or personally you have to take money, then you have only that option that you have to file money recovery suit, normal litigation in civil court, or suitable criminal suit, whatever, 420 or whatever that suits your. So first action is strong compliance. See, strong compliance में सबसे पहली चीज क्या आती है? Invoices, because this from there your transaction starts. So I'm going to share some sample invoices. Then we are going to discuss that. Am I audible and visible as well? Actually, the font is very small, I think. Now this slide is okay. Okay. These sample invoices, are you able to see? Now So the font is, yeah, now it's okay. Yeah, can be a little bit visible. Yeah. If you can just increase the font size a little bit more. Now is it okay? Yes, sir. Good to go. So these are some of the clauses that you are supposed to put in your invoices. That is, checks are subject to realization, and if you are a MSME, right, governed by MSME Act 2006. I'm going to discuss this thing later on. But if you are MSME, means if you are of manufacturing or service from service sector and you have Udyam registration as well, just write it this: you are governed by MSME Act 2006. Then your war is going to be very easy legally. And again, no liability. This thing I'm going to provide you as well.
legal resources. In case you are a trader, then write this thing, order 37 CPC resolution assured. Means if you are writing this in your invoice, then, and you are a trader, then while filing, if suppose say your buyer does not pay the money, then at the time of filing the suit and when the evidence will come, और उसमें जब आपकी invoices होगी, and if it is written there कि section 37 order 37 of CPC you have mentioned it, so this will again give you a legal benefit कि आपने अपोजिट पार्टी को बता दिया था कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम फटाफट, दिस इज अ टाइप ऑफ केस दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च. This is a sample I'm going to provide you as well. And second is sample agreements. Section 138 of, if suppose say you have something in mind for section 138 for check bounce, and in case of section of order 37 you have something that you want to write it, see you have to see in what category you are falling and what are the types of your buyers. If suppose your buyer are giving in mostly checks, your checks are coming, then you should go for this clause. And if suppose say they are not they are doing bank transfers, then it is better that you should go for this. Clear and effective communication should be on email or WhatsApp. See, the idea is this, that you have to have that evidence of your communication. जब भी आप केस फाइल करते हैं तो सबसे बड़ी इशू ये आती है that communication is missing, evidence is missing. अब तो वो evidence क्या है? Evidence is the communication which is being happened. Suppose say आपने कोई भी invoice raise किया and you have said that have you got the material, have you received it? तो suppose say उसने sign नहीं किया हो उसको ऊपर, it happens कि उसकी receiving पे sign नहीं करते, then if you have shared if the opposite party has given you yes I have received it, so in the court of law आप ये बता सकते हैं कि yes इनको माल जो है मिल चुका था. तो कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे ईमेल पे हो, कीप इट विद यू. Second is persistence and proactive follow-ups. Regular and proactive follow-ups, overdue payments. मतलब इसके अंदर आप proactively don't wait for हमारे clients हमने देखे हैं, they wait for 2.5 years, 2 years, or sometimes they cross the limit of 3 years. तो डोंट वेट फॉर दैट. आप एक प्रॉपर सिस्टम बनाइए कि जिसके अंदर हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद यू हैव दिस थिंग कि आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं. एंड देयर आर सॉफ्टवेयर्स लाइक क्विक बुक्स, जेरोक्स, फ्रेश बुक्स जो आप मैनेज कर सकते हैं, जो आपके बिहाफ पे जो है ये नोटिसेस भी सेंड करती हैं. तो अगर आपके अकाउंट्स के हैं जो भी अकाउंट्स के डील करती हैं, जब उनसे आप बात करेंगे तो दे विल लेट यू नो कि इससे आपका फायदा क्या हो सकता है. एंड अबव ऑल आपकी जो डेटर्स हैं, आपके जो बायर्स हैं, सपोज से वो भाग गए हैं, वो एब्सकॉन्डिंग हो गए हैं, देन यू टेक द सर्विसेज ऑफ स्किप ट्रेसिंग एजेंसीज. ये हर जगह होती हैं, जस्ट गूगल में राइट इट डाउन, स्किप ट्रेसिंग एजेंसीज नियर मी. इससे आपकी जो भी आपके आसपास बेसिकली ये एजेंट्स होते हैं, ये डिटेक्टिव्स होते हैं जो कि पता लगाते हैं कि आपके जो बायर हैं वो कहाँ भाग गए. चलिए, लेट्स कम ऑन दिस द थर्ड एक्शन,
इफ यू हैव चेक एंड और वो बाउंस हो गया, तो इसमें आपको इनिशियली जो है वो डिमांड नोटिस देना होता है. द डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 138, अगर आपने किसी के ऊपर केस कर रहे हैं चेक बाउंस का, तो 30 दिन के अंदर अंदर जब से आपको मेमो मिला है बैंक से, आपको से डिमांड नोटिस भेजना है. अब डिमांड नोटिस जरूरी नहीं है कि आपका एडवोकेट ही भेजे. ये हमारी एक लॉ, केस लॉ है, जिसके अंदर it was decided कि it is not necessary that advocate is going to send. Necessary is that you have sent a reminder to him. और इसका एक सैंपल डिमांड नोटिस विल सी कि इसके अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं. सी इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, आपने जिसको भेजना है उसका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और सब्जेक्ट में डिमांड नोटिस फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स. दैट इसके अंदर ये लाइन आप आई हेयर वाइज, इसके अंदर ये जरूर लिखना है कि आई हेयर वाइज सर्व अपॉन यू द फॉलोइंग डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ताकि देखिए कभी कभी होता गया है कि यू नो कि आपका जो अपोजिट क्लाइंट है वो चेक बाउंस का डिमांड नोटिस आएगा तो वो पैसे दे देगा, बट अभी आप जाना नहीं चाहते एडवोकेट के पास, तो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस डिमांड नोटिस टू हिम. आप अपना इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, उसके बाद आपने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करा उसे कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ था, क्या उसने मांगा था, क्या आपने माल सप्लाई किया था, क्या सर्विसेज दी थी, क्या आपने इनवॉइसेस रेज किए थे. देन आपने उसको बताना है कि आपने उसको यू हैव रिक्वेस्टेड मेनी टाइम्स बट ही हैज नॉट मेक द पेमेंट, एंड this the details of the check which is being dishonored, and telling him that this is the legal action which you are which I am going to take against you, and failure to comply within 15 days of receipt. ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है कि आपको ये नोटिस जो दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि आपको फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है. अगर आपने नहीं दिया तो विद इन 15 डेज ऑफ रिसीटिंग, मतलब आपको जब ये मिलता है, अपोजिट पार्टी को जब ये मिलता है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर अगर उसने नहीं दिया, देन यू आर लीगली एलिजिबल टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम ऑन सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. कॉस्ट ऑफ द नोटिस यू कैन राइट एंड योर सिंसियरली अपनी आप डिटेल्स लिख सकते हैं. सो अगर आपका चेक बाउंस हुआ है, आपने आप एडवोकेट के पास नहीं गए या सर्विसेज नहीं ली, तो दिस इज अ सैंपल, these are the things you can include in your demand notice, and this will good serve while when you have taken आप जब केस करते, then it will be admissible. चलिए लेट्स डिस्कस कि आपने चेक बाउंस का केस किया किसी के ऊपर या करने जा रहे हैं. सपोज से द चेक अमाउंट वाज ऑफ 2 lakhs of rupees. फर्स्ट यू आर गोइंग टू टेल योर एक्यूज, मतलब आप अपोजिट पार्टी से एक बार बात कीजिए कि यार देखो 2 लाख का केस है, इसके अंदर आप एडवोकेट हायर करोगे 15 से 20 लाख रुपए, तो 15 से 20,000 रुपए तो आप उसको वैसे ही यू आर गोइंग टू गिव द एडवोकेट फीस. सेकेंड, इसमें बेल लेनी जरूरी होती है, और बेल जो होती है अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द चेक अमाउंट होती है, तो वो भी दिस इज गोइंग टू बी 20,000 मोर, 15-20,000 as a advocate fees, around 20,000 as a
bail fees. Plus, there is a clause in under section 138 कि आप 20% of the check amount advance मांग सकते हैं on the discretion of the magistrate. वो आपके एडवोकेट जो हैं वो लगाती हैं उसको, उसके बाद वो एक्सेप्ट हो जाती है. तो वो केस शुरू होने से पहले he is bound to give you 20% of the check amount in advance. So अगर आप कैलकुलेट करें तो this comes 20 plus 20 plus 40, around 80,000. 2 लाख में से 80,000 रुपए तो ऑलरेडी उसकी जेब से निकल ही जाएगा पहली और दूसरी हियरिंग के अंदर अंदर, दूसरी या तीसरी हियरिंग आप लगा. Then whenever he is going to come for attending the hearing, उसके बिजनेस का लॉस होगा. एंड इस चेक बाउंस केस के अंदर द फाइन इज 2 times द चेक अमाउंट. तो मतलब जो रिस्क इन्वॉल्व है वो ये है कि 2 लाख का अगर अमाउंट है उसका, तो 2 लाख का और उसको फाइन उसको मिल सकता, मतलब उसके ऊपर हो सकता है. और अगर वो पे नहीं करता, ही इज गोइंग टू बी इन जेल. और जेल जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि उसकी जो लायबिलिटी है वो फ्रीज हो जाएगी. लायबिलिटी विल स्टिल बी देयर एंड द इंटरेस्ट विल बी एक्रूड. उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है इसके ऊपर. सो द नेटशेल इज दिस कि आप अपने क्लाइंट को, आप अपनी जो अपोजिट पार्टी है, टेल हिम कि आपके इतने पैसे तो ऑलरेडी लग ही जाए. 2 लाख का अगर केस है, 2 लाख में से पहली दूसरी तीसरी हियरिंग के अंदर यू आर गोइंग टू हैव this 80,000 of expense out of this, plus the risk of of fine and going to jail is still there. So it is better that you are going to we should settle it. See, this is the practical thing. This is how around 20 to 30% of the cases we settle it before filing it. अगर हमारे लीगल नोटिस पे अगर अपोजिट पार्टी से बात हो जाती है, and we try hard telling him all those things that you are doing all those things, is better to settle it before starting the litigation. Now comes the money back through MSME Act 2006. इसके अंदर what are the steps? अगर you are a manufacturing unit or a service providing unit having Udyam registration thoroughly registered with the MSME portal. So if suppose say your opposite party has not given any money, the first step is online complaint on Samadhan portal. You have to make this complaint online and tell him all important provisions of MSME Development Act 2006. Now we'll see what are the see, it is written here itself. First of all, if after 15 days of delivering the goods or providing the services, if the opposite party has not given complaint in written, communicated to you in written, then after 15 days, it will be considered as deemed acceptance. Now he cannot say anything. अगर 15 दिन तक उसने कोई कंप्लेंट नहीं दी आपके जो भी गुड्स थे वो सप्लाई करने के बाद या सर्विसेज देने के बाद, तो अब अगर आप पैसे मांग रहे हैं, आप वो कह रहे हैं कि आपके माल में दिक्कत थी या आपकी सर्विसेज में दिक्कत थी, तो दैट वोंट बी एक्सेप्टेड. It will be deemed acceptance. And
the next important clause is 3 times of the bank rate इसमें इंटरेस्ट लगता है. बैंक रेट इज अ रेट जिससे आरबीआई जो है वो बैंक्स को जो लोन देती है, दैट इज अ बैंक रेट, दैट इज अराउंड 5 to 6%, और उसका 3 times कंपाउंडिंग मंथली ही इज टू गिव इंटरेस्ट. एंड इट्स सपोज से you the matter is disposed in your favor, आपकी फेवर में जजमेंट आ जाती है. तो अगर वो उसको अपील करना चाहता है तो उसको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, एंड ही हैज टू गिव 75% ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब उसकी अपील जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी. अब जब ये सारी चीजें एंड अपार्ट, अभी रिसेंटली भी द सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्लूडेड. इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऐड किया गया है. उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई बिजनेस, इफ एनी बिजनेस who's who has not given his dues towards the MSME, अगर किसी बिजनेस ने एक MSME को पेमेंट नहीं करी है तो वो उसकी उस साल में एक्सपेंडिचर में अलाउड नहीं होगा, वो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज. जब आप अपनी अपोजिट पार्टी को आप बताते हैं कि अब दिस इज द अमाउंट, suppose say 1 lakh you have to take from him. Now this 1 lakh, he cannot show it in his expenditure in his balance sheets, in his profit and loss account. He has to show it in income. Ab agar if your case goes to money this MSME courts, the resolution is very faster. बिकॉज अगर आपका लिटिगेशन जो है वो सिविल सूट नॉर्मल इसमें जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, तो वहां पे साल में 1 या 2 बार हियरिंग होती है. बट इफ योर केस एज एन MSME काउंसिल के अंदर अगर होता है, अब काउंसिल पे डिपेंड करता है कि कौन सी एरिया की काउंसिल है, तो इनिशियली वहां देर लगती है कंसिलेशन हियरिंग्स के अंदर. सी द फर्स्ट स्टेप, जो एप्लीकेशन आपने करी है वो एप्लीकेशन जो है वो उसको केस नंबर अलॉट होता है. देन द हियरिंग टेक्स प्लेस. फर्स्ट द कंसिलेशन हियरिंग्स आर देयर. 3 कंपल्सरी कंसिलेशन हियरिंग्स इसमें कंपल्सरी होती है जो कि काउंसिल वाले बुलाती है. कंसिलेशन हियरिंग इज लाइक कि दोनों को बुला के वो मीडिएशन की बात करते हैं कि आपस में आप कंसाइल कर लीजिए. इसके अंदर कोई मतलब इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं होती. बट इफ बोथ ऑफ पार्टीज आर नॉट एग्रीइंग ऑन द पेमेंट ड्यू, तो दिस पर्टिकुलर केस इज ट्रांसफर टू आर्बिट्रेशन. अब आर्बिट्रेशन में ट्रांसफर होने के बाद वहां उनको 1 साल का टाइम दिया जाता है, दैट विद इन 1 year यू हैव टू रिजर्व द ऑर्डर, एंड विद इन 18 months you have to finally you have to tell what is the order is. means कि आपको 1.5 साल के अंदर आपको वो ऑर्डर बाहर भी मींस जजमेंट भी प्रोनाउंस करनी है, और 1 साल के अंदर रिजर्व कर. नाउ कम्स ऑर्डर 37. क्या चीज है? अगर आप ट्रेडर हैं, if you are a trader या फिर मीडियम एंटरप्राइज, बिकॉज इफ यू आर अ माइक्रो एंड स्मॉल, तब तो आप MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 में you are coming. But if you are a medium enterprise or a trader, then you are not coming in the ambit of MSME Development Act 2006 of delayed payments. So first of all, on the basis of checks or promissory notes, it can be done. So ये आपको इनिशियली पता होगा कि आप ट्रेडर हैं या मीडियम एंटरप्राइज है. मीडियम एंटरप्राइज वो होती है जिनकी 50 करोड़ से टर्नओवर जो है वो ऊपर होती है. तो आप जो है प्रॉमिसरी नोट बड़ी पेमेंट्स के लिए
मेक श्योर कि आप प्रॉमिसरी नोट जो है बनवा रहे हैं. सेकेंड थिंग, नो लीगल नोटिस इज रिक्वायर्ड इन इट. इसके अंदर कोई लीगल नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि चेक बाउंस के अंदर कंपलसरी होता है लीगल नोटिस देना, बट दिस इज नॉट कंपलसरी इन लीगल नोटिस in this order 37. Third, if court thinks that order 37 is admissible, then someone to appear issue in form A appendix B. Basically, अगर कोर्ट जो है ये ऑर्डर 37 का जो आपने सूट डाला है ये उसको एक्सेप्ट कर लेती है, देन वो इशू करती है someone to appear from opposite party. 10 days time is given for reply. 10 दिन का टाइम दिया जाता है रिप्लाई करने के लिए, you know. और if defendant it does not appear within 10 days, अगर वो 10 दिन में अपीयर नहीं होता, जवाब नहीं देता, then rule 2 will be applied. और अगर वो आ जाता है तो फॉर्म ए में उसको समन टू जजमेंट करना पड़ता है. बेसिकली उसके अंदर उसको राइट उसको सब बता के लिख के बताना पड़ता है कि व्हाई ही इज नॉट लायबल टू पे द अमाउंट व्हिच इज बीइंग डिमांडेड बाय यू. एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिप्लाई ये डिसाइड किया जाता है कि इसको समरी सूट में ही ऑर्डर 37 के समरी सूट में ही आगे लेके जाना है या फिर नॉर्मल सूट में आगे इसको चेंज करना है. नाउ इन केस अगर आपका सूट जो है वो नॉर्मल रिकवरी सूट में अगर ट्रांसफर हो जाता है तो उसको रिटर्न स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर देनी होती है. देन अगेन जो भी इसके अंदर प्रोसेस होता है, डिफेंडेंट एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, फाइनल जजमेंट, जो नॉर्मल मनी रिकवरी सूट्स के अंदर होता है वो फॉलो किया जाता है. But if the court is not satisfied with the reply of defendant, the judgment will be given. अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होगी उसके आंसर से तो उसी वक्त उसकी जजमेंट भी दे दी जाएगी. सी ऑर्डर 37 इज बेसिकली समरी सूट. वो सिर्फ 3-4-5 हियरिंग्स का सूट होता है. इसके अंदर आपका केस जो है डिसाइड हो जाता है और इसके अंदर आप जो व्हाट्सएप से जो वॉइस रिकॉर्डिंग है और जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं. नाउ सी कि अगर इफ डिफेंडर डज नॉट हैव एनी सस्टेनेबल प्रूफ देन जजमेंट इज गिवन. सेकंड, इसके बेनिफिट्स क्या क्या ऑर्डर 37 के. सेकंड, इट इज द बेस्ट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड रिजॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट. ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है बिकॉज उसके अंदर क्लियर कट ट्रांजैक्शन होती है जो कि समझ में आ जाती है. लाइक कि आपने किसी को माल दिया, ये माल की चीजें थी, ये आपको देना था, इतने दिन के अंदर देना था और उसने नहीं दिया. इट्स इन क्लियर एंड सिंपल. बजाय इसके कि आपने किसी को लोन दिया था, किस लिए दिया था. नाउ द कॉज एंड इफेक्ट, आपने क्या पैसा क्यों, मतलब माल जो दिया था उसको दिया था, उसकी एवज में उसको पैसे देने थे. दैट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर. इसलिए ये ऑर्डर 37 जो है दैट इज मोर suitable for business transaction. Third, defendant has not right to apply for leave to defend or rejected or if allowed could not prove. Means अगर वो डिफेंडेंट अगर रिप्लाई नहीं देता तो इट मीन्स उसको मान लिया जाता है कि वो प्रूव नहीं कर पाया और वो चीज आगे दोबारा ऑर्डर 37 की जो जजमेंट है वो वैसे ही आगे बता दी जाती है. ये फास्ट है, इसके अंदर फॉर्मेलिटीज काफी कम होती है एंड ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड. डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज अलाउड. जैसे ओरली मोस्टली लोग बोल देते हैं अरे नहीं जी नहीं, हमने ओरली इनको बता दिया था कि आपके माल में दिक्कत है दिस एंड दैट, तो इसके अंदर वो चीज नहीं चलेगी. इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ चाहिए. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि द ऑर्डर 37 इज द मोस्टली इट्स अ फाइनल जजमेंट. मोस्टली इसके केस में नो अपील इज अलाउड बिकॉज द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर. सो इट इज बेटर टू यू नो settle it in early stages. Now this was very short and crisp
webinar PPT from my side. Now the forum is open for the question and answers. Can we have any if any question and answers are there? Am I audible? जी मुंबई से मिस्टर जिनेश, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके, सो मुंबई से मिस्टर जिनेश सेठ का क्वेश्चन है, what if the client is not signing the contract but the services is going on, how to deal with invoices not being paid in such cases? Please, not all invoices are being sent on the email to the client. Yes, अगर देखिए, अगर आपने उसको इनवॉइस रेज किया है तो ऑब्वियसली यू मस्ट बी हैविंग योर जीएसटी नंबर एंड यू हैव आल्सो मेंशन्ड हिज जीएसटी नंबर एज वेल. सो इवन इन दैट केस, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन नहीं कर, दैट इज यू हैव नॉट गॉट द वर्क ऑर्डर और परचेज ऑर्डर in the case of goods, if the goods is supplied, and work order is in the case of when services are given, then affidavit can be made, जिसके अंदर the this evidence, you as a seller is going to tell on affidavit that whatever was agreement was there was on verbally or in whatever mode, on what agreement on WhatsApp or verbally, in whatever way it was done. Mr. Jinesh Seth, are you still there? Hello. Sorry. Hello. Yes, Manishji, would you like us to start with the question answer now, right now? Yeah. So I would request all the participants, if you have any queries and questions, kindly raise your hands, or you can just write your questions in the comment section also, and we will be answering. So I see Akshay ji wants to ask a question. Please raise your hands, guys. Can you unmute Akshay ji? And Akshay ji, you can please ask your question. Hello. जी अक्षय जी बताइए. हाँ जी, good evening, sir. Good evening जी. So this question was actually from my side, that the Yeah. one that you were answering. Okay. So the client is not willing to sign the agreement, but I am providing him security guard services Okay. for last 1 or 2 years now, and he is kind of I keep everything on the email, but now I have stopped following up on the agreement also, because I have given up, because I think that he is not interested in signing the agreement, and he just wants. So the point that I have made from my side to keep myself safe is that I have started giving him the invoices on the email. So as per you, all I have to do is make Have you reverted? Have the opposite party reverted to you on the invoices? No. There is no revert, but I keep getting payments in my this thing, but the Fine. payments are delayed by 2 or 3 months. So Not an issue. Yeah. Tell me. so in the eyes of court, I think that the court can reasonably understand and assume that if I've been giving him mails and my invoices are getting cleared, that means that my invoices are being acknowledged. Yeah. See, it is as good as if you have made a verbal order. Mostly 90% in India, at least more than 90%, जो agreements होते हैं वो verbally होते हैं, and you start providing him service or giving him the goods or manufactured.
तो इसके अंदर आप अपने एक एफिडेविट बनेगा जिसके अंदर आप ये उसके अंदर लिखेंगे कि आपने जो भी आप दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ दैट वाज वर्बल, और हमने ये चीजें अप्लाई, ये these are all the services which we have given, and this is a running account as well. See, if he is paying you, तो itself आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यस आपको जो ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है समाधान पोर्टल में, उसमें परचेज ऑर्डर में आपको एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा। अदरवाइज द रनिंग अकाउंट विच यू आर हैविंग, जिसमें वो आपको पेमेंट कर रहा है, that will provide a good base to initiate a legal case against it. So my only fear is that tomorrow, if he discontinues the service and 2 to 3 months invoice payments which are pending in a cyclical way, so in that case I have to initiate legal proceeding and start with the affidavit part first, right? That's what you mean to say? Affidavit for the purpose of ऑनलाइन कंप्लेंट। सी, अगर आप समाधान से जा रहे हैं तो समाधान पोर्टल पे अगर आप जाते हैं तो आपको दोनों चीजें जो हैं, इनवॉइसेस, लेजर एंड परचेज ऑर्डर, यू हैव टू आपको बट इफ देयर इज नो परचेज ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर अगर नहीं है तो आपको उसका एफिडेविट एक बनाना पड़ेगा 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, जिसपे आप लिख के देंगे कि हमारी सर्विसेज चल रही हैं, आपकी जो आप दोनों के बीच में ना वर्बल एग्रीमेंट हुआ था, रिटन कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, दिस इज द एफिडेविट, और उसको आप लगाएंगे अपने इस पे परचेज ऑर्डर की जगह पे आप अपलोड करेंगे। बेसिकली उसमें बिना अगर अपलोड करने के लिए अगर आप फाइल नहीं है तब आपकी जो कंप्लेंट है वो चलेगी नहीं, और अगर आपने कुछ और अपलोड कर दिया उसमें तो आपकी जो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओके तो और सपोज कि इफ द पर्सन इज एब्सकाउंडिंग, अगर वो भाग जाता है, वो जगह ही छोड़ के, दिल्ली में है सपोज, अपना बिजनेस रैप किया, छोड़ के चला गया, जैसा मेरे साथ कोविड में हो गया था एक बार, एंड पर्सन इज आल्सो नॉट एन GST रजिस्टर्ड गाय बिकॉज उसके वो स्कूल चलाता था, तो स्कूल में GST लगता नहीं है, तो द पर्सन इज एब्सकाउंडिंग और उसके जितने भी लीगल नोटिसेस जा रहे हैं कहीं जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज ही इज नॉट अवेलेबल इन द ओल्ड एड्रेस, नोबडी इज एबल टू रिसीव इट। So you mentioned something about skip services, skip. बेसिकली ये डिटेक्टिव सर्विसेज होती हैं लो लेवल की। इसके अंदर आपके जो भी जो वायर्स जो होते हैं वो एब्सकॉन्ड किए होते हैं, ये उनके बारे में पता करते हैं। इनको कैसे, मतलब गूगल में क्या टाइप करना पड़ेगा कि मिल जाएंगे? गूगल में जस्ट राइट skip tracing agencies around me और नंबर आ जाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये जो skip ट्रेसिंग एजेंसीज होती हैं ये एक बड़े लेवल पे भी काम करती है। I'll just explain you कि आपने सुना होगा कि IBC के इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के केसेस होते हैं, NCLT के अंदर इंसॉल्वेंट हो जाती है कोई कंपनी, इफ यू आर अवेयर। तो जब कंपनी बड़ी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसकी लिक्विडेशन होती है, मतलब उसके एसेट्स और लायबिलिटीज जो है एसेट वो निकाली जाती हैं और एसेट्स की वैल्यूएशन की जाती है और उसे बेचा जाता है। तो अब मोस्टली क्या करती हैं ये कंपनीज जो हैं वो अपनी एसेट्स या तो छुपाती हैं या उसकी वैल्यूएशन जो है कम करती हैं। तो अगर ये जो स्किप ट्रेसिंग एजेंसीज हैं ये काम भी करती हैं, तो मेनली इनका ये काम होता है जो जाके पता करती हैं कि इस कंपनी के कौन कौन से एसेट्स हैं, उसकी क्या कहाँ पे है। बिकॉज मोस्टली अगर आप इंसॉल्वेंसी में अगर आप जाएंगे तो मोस्टली इंसॉल्वेंसीज जो होती हैं वो बड़ा सोची समझी साजिश होती है कंपनी से, बिकॉज उनको पता होता है कि यार ये हमारे इतने एसेट्स हैं और हम इस कंपनी को दूसरी कंपनी को टेक ओवर में इतने के दे देंगे। बट वहां पे इन स्किप ट्रेसिंग एजेंसीज का काम आता है बड़े लेवल का, बट वो ये छोटे काम भी करती हैं, सो दे आर स्पेशलाइज्ड इन इट। तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंसॉल्वेंसी के अंदर, और उसके अंदर एब्सकॉन्डिंग का भी होता है। अब इट डिपेंड्स ऑन योर अमाउंट ऑफ रिकवरी, तो उस हिसाब से ही विल चार्ज एंड आपका वो रिजाइड किधर करता है। इफ दैट इज इन दिल्ली तो इट्स बेटर कि आप दिल्ली के किसी स्किप ट्रेसिंग एजेंसी को कांटेक्ट करो।
हाँ, जैसे वो दिल्ली से भाग चुका है एंड सो देन आई एम लाइक क्लूलेस वे टू फाइंड। हाँ, तो मतलब आपको उसका जो लास्ट नोन एड्रेस है उसमें स्किप ट्रेसिंग एजेंसी वाले बंदे को भेजना पड़ेगा। वो वहां से बातचीत करके इधर उधर से, दे हैव मेनी दिस थिंग, ओके। उनके पास भी टूल्स होते हैं। वो आधार से भी निकाल लेते हैं, वो इधर से भी निकाल देते हैं, पड़ोसियों से भी बात करते हैं। वो कुछ ना कुछ वो निकाल लेते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं। कोई पुराना एम्प्लॉय हो गया, तो दे आर एक्सपर्ट इन इट। राइट सर, थैंक यू। Thank you, Akshay ji. Can we have our next participant, Amit ji? Amit ji, would you like to ask a question? Please unmute Amit. Kindly unmute Amit ji, please. Hello. Yes, good evening, ma'am. Good evening, Amit ji. Please ask your question. ये मुझे एमओयू के बारे में पूछना था कि ये कितना ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है, या कैसा रोल है इसका एमओयू का अपने लेन देन के मामले में। एमओयू का रोल किसके मामले में? लेन देन के मामले में। बिल्कुल है, बिकॉज अगर आपने एमओयू किसी के साथ किया है और आपने नोटराइज करके उसको वो करा है, दिस इज एज गुड एज यू नो योर कॉन्ट्रैक्ट। आप उसके दूसरा लिटिगेशन भी डाल सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसका एक अलग से केस डाल सकते हैं। सर, ये But- नोटराइज करना इम्पोर्टेंट है। यस, आप अगर नोटराइज कर लेते हैं और विटनेस होता है तो वो प्रॉपर हो जाते हैं ना। अगर कल को उस डॉक्यूमेंट के बेस, उस डॉक्यूमेंट को कहीं आप प्रेजेंट करते हैं, तो अगेन यू हैव विटनेस ऑन दैट पेपर एंड विच इज बीइंग नोटराइज्ड। और बेटर है उसकी नंबरिंग भी आप अगर करवा लेते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि अगर आप उस नोटरी के पास गए थे, आपने आधार दिया था, आपके विटनेसेस ने आधार दिया था, वो सारे गए थे और उन्होंने वहां पे उसकी एंट्री करी थी। नोटरी दो तरीके की होती है, एक तो आप वैसे ही कर लो, एक होती है नंबर वाली नोटरी होती है। उस नंबर वाली एंट्री करने के लिए आपको नोटरी के पास जाना होता है। आप कहीं भी, आपका जो भी आसपास या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ता हो या अथॉरिटी पड़ती हो, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पड़ती हो, वहां पे बैठे होते हैं। तो आप वहां जाते हैं, आपका जो अपोजिट पार्टी है वो आधार लेके जाते हैं और आपके विटनेसेस वो भी जाते हैं। आप अपना आधार बताते हैं, वो वहां एंट्री करते हैं, वो अपने रजिस्टर में साइन करवाते हैं, अपनी पूरी स्नैप लगाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं। या फिर आप ओथ कमिश्नर से करवा लीजिए, वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो ओथ कमिश्नर होता है ना, वो वहां साइन कराता है और वहां पे एक स्टैंप लगाता है कि ही हैज साइंड इन फ्रंट ऑफ मी, और उसके साइन यहाँ भी होते हैं। तो हाँ, इस मतलब एक, अगर आप नोटरी के पास जाते हैं वो भी वो है, अगर आप ओथ कमिश्नर के पास जाते हैं, पर पेज कितने 20 रुपए तो लेते हैं ओथ कमिश्नर, तो कुछ नहीं है। और आपका मेरे ख्याल से 50-100 रुपए पर पेज जो है वो लेते हैं, नोटरी वाले लेते हैं। बट काम आपका बहुत अच्छा का काम हो जाएगा, कि जिसके अंदर उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपने आधार नंबर दिया है, आपके अपोजिट पार्टी ने आधार नंबर दिया है, वहां जाके साइन किया है। नाउ ही कैन नॉट रिफ्यूट दैट। Yes, sir. Thank you. Thank you so much. ओके, Okay. Can we have Chandresh ji? Please unmute Chandresh ji and you can ask your question, please. Chandresh ji, would you like to ask a question? Please unmute Chandresh ji and you can ask your question, please. one Mr. Pankaj Mittal has also asked the question. Mr. Pankaj Mittal is there on webinar. Do we have Pankaj ji here? Please reply on the chat so that Manish ji can answer your question, please. हेलो, हाँ हाँ जी, जी, चंद्रेश जी बोल रहे हैं। पंकज मित्तल बोल रहा हूँ सर।
हाँ पंकज जी बोल रहे हैं. हाँ मनीष जी, जी, पंकज जी is there. He's online. जी पंकज जी आप सर मैं बताइए। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हूँ। जी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन है कि डिलेड पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। है। मेरी एक पेमेंट है 1 करोड़ रुपए की मार्च 2023 की जी और अभी तक उन्होंने नहीं दिया मुझे। देखिए चंद्र जी, पंकज जी, इसके अंदर जो हमारा, अगर आप एमएसएमई के थ्रू जाते हैं, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में, जी सर। द एक्ट में इटसेल्फ ये रिटेक्शन है कि कहीं भी किसी भी लॉ में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हो उसको जी पास करके इसी को ही माना जाएगा, सिर्फ ठीक है। एक्सेप्ट आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो मतलब यू हैव, अगर आपने जो कोर्ट, आपने जो केस किया है वो एमएसएमई के थ्रू किया है, जी अगर आपने एमएसएमई के थ्रू किया है तो जो एमएसएमई के इसमें लिखा हुआ है, प्रोविजंस में लिखा हुआ है कि जैसे 15 दिन के अंदर अगर उन्होंने रिवर्ट नहीं करा तो डीम्ड एक्सेप्टेंस है, या उनको 3 गुना 3 टाइम्स देना है बैंक रेट का, जी तो वो चाहे सुप्रीम कोर्ट भी चला जाए, वी हैव केसेस डिसाइडेड इन सुप्रीम कोर्ट। ऐसा भी हुआ है क्लाइंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा दिस इज अ स्पेशल एक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी अपोजिट पार्टी इंसॉल्वेंसी में गई है तो ही मतलब यहाँ इसकी प्रोसीडिंग्स रुक सकती है, अदरवाइज एमएसएमई की प्रोसीडिंग्स और इसके लॉ को किसी से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। स्पेशल इसके अंदर वो प्रोविजन है कि जिसके अंदर कहीं और कुछ भी लॉ कहता हो, कोई भी ले आए, तो जी। इसके क्लॉज है सेक्शन 24, तो वो ये कहता है कि इसको सुपरसीड किया जाएगा, मतलब एमएसएमई एक्ट प्रोविजन को ही माना सुपरसीड करेगा। जी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी हैं जिसमें इट इज बीइंग डिसाइडेड, और काफी बहस हुई, उन्होंने जाके कभी 1 करोड़ का प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट निकला 1.5 करोड़ का, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स आई, उन्होंने भी कहा कि जो एमएसएमई एक्ट में लिख दिया है आपको उसके अकॉर्डिंग ही देना है, इससे डेविएट नहीं कर सकते आप। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। रवि सौरभ जी हैं? Can we have Chandresh ji to ask the question, please? Can you unmute him? If corporate debtor declare, इनका क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया चंद्रेश जी का। जी I don't know. I think वो unmute नहीं हो पा रहा है. Is there anybody else? Dinesh ji? Dinesh ji, Mr. please ask the question. Am I audible, ma'am? हाँ बताइए। Manish, you mentioned that the rate of interest at which the payment can be claimed is 3 times the bank interest, right? जी Abhi, Manish ji, I am a borrower. I have mortgaged my property. So basically, I am into manufacturing as well as trading business. okay. My activities in Mumbai are limited to trading, and my activities in Gujarat, having 2 separate GST numbers, are into manufacturing. Okay. Now, समझो अगर मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग में मैंने किसी को इनवॉइस रेज किया है, पेमेंट डिले हुआ है, what is the rate of interest I can get? For the simple reason I am paying a interest on my overdraft to the extent of 12% per annum. So in that case, if you say by 3 times, तो वो तो 36% हो जाएगा, is it not? नहीं, bank rate is the rate in which RBI is giving to banks. जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंक्स को, जो एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक को जिस रेट से लोन देता है वो बैंक रेट कहलाता है। वो 4-5%, 5-6% की और उसकी कंपाउंडिंग मंथली।
that हाँ, email. उसको कंपाउंडिंग मंथली करना है। जी जी जी, और वो साइट पे अवेलेबल होगा। और वन मोर क्वेश्चन सर, कि जी। आपने एक तो लीगल रिकॉर्ड्स बताया टू गेट द डिलेड पेमेंट। हम हमारी लाइन में, आई एम बेसिकली इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मा एपीआईज, तो उसमें क्या होता है, तो यूजुअल क्रेडिट पीरियड इज 60 to 90 days। ठीक है, अब कई बार क्या हो जाता है कि समझो 90 days क्रेडिट देने के बाद पार्टीज डीली डेली एज फार एज द पेमेंट टर्म्स इज कंसर्न। जी तो ठीक है, अगर समझो एंड एज पर द जीएसटी प्रोविजंस, अगर कोई पेमेंट 6 महीने से ज्यादा अनपेड रहता है तो उसका क्रेडिट हैज टू बी रिवर्स। सो वो हम लोगों को एज अ सप्लायर डबल फटका लग जाता है। नहीं, आई एम नॉट गेटिंग, बिकॉज देखिए जो आप कैन यू कम अगेन, बिकॉज देखिए जो एमएसएमई की प्रोविजंस में लिखा हुआ है ना, चलेगा तो वही। कोई भी इसमें 45 डेज का क्लॉज है, आफ्टर 45 डेज इज द इंटरेस्ट इज ड्यू। आपने जो इनवॉइस रेज करी या माल सप्लाई करा, जो सर्विसेज दी, या टू बी प्रिसाइज जब इनवॉइस रेज करी, उसके 45 डेज बाद इंटरेस्ट जो है वो आप शुरू कर दें 3 times of the bank rate. This is what MSME Act says, and everyone has to go accordingly. अच्छा, even if there is a purchase order which says payment terms of 60 days or 90 days, That does not matter. कोई एग्रीमेंट कुछ भी कह दे, वो तो ये भी कह सकता है 12 महीने बाद दे, 9 महीने बाद दे, बट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है एमएसएमईज के लिए, कंसीडरिंग द पॉइंट दैट एमएसएमईज और वो मनी रिकवरी जो है उसी में ही मारे, उनके लिए लॉ लेकर आई है। और एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज कैन से एनीथिंग, समझ but law prevails, always prevails. Okay, Thank you. thank you। हरी राम जी हैं, यशवर्धन जी, रवि सौरभ जी, हरी राम जी, चंद्रेश जी, देशी जी, वैदही जी, मधुर जी, अक्षय जी, अक्षय खजूरिया जी, योगेश कुमार गुप्ता जी, क्वेश्चंस तो काफी पूछे हुए हैं, बट स्टिल अगर वो यहाँ है। जी, आई एम ऑडिबल? हाँ जी, क्या नाम है सर, बताएंगे अपना? चंद्रेश जी। हाँ जी चंद्रेश जी, बताएं। अच्छा, ये मेरी कंपनी, मेरे जो एक कॉर्पोरेट कंपनी है वो ऑलरेडी 5 ईयर से एनसीएलटी में है। ओके। तो अभी जैसे उन लोगों ने जब वहां पर अपने क्लेम सबमिट करने के लिए बोला था, अपने क्लेम सबमिट किया था और अपने वो लोग ने एडमिट भी किया था। ओके। तो अभी भी उसका मतलब उस लोग ने 3 प्रोफेशनल चेंज कर चुके हैं, लेकिन आज मोटा मोटी 5 साल होने आया, उसका कोई मतलब कंक्लूजन, कोई ऑर्डर आया नहीं है। एक बात। दूसरी बात के ट्रेडर को एज ए ट्रेडर, मतलब एज ए ट्रेडर को माने ये अपने एमएसएमई समाधान में अलाउड है? नहीं, देखिए ट्रेडर डिलेड पेमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके। अभी 2022 से वो रजिस्ट्रेशन जरूर कर पा रहे हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ओके। डिलेड पेमेंट्स का जो इनिशियली बनाया गया था, डिलेड पेमेंट का, वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के लिए बनाया गया था, ट्रेडर के लिए नहीं किया गया था, तो उसमें अभी कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। एंड फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू हैव आस्क्ड इज अबाउट एनसीएलटी में जो आपका केस चल रहा है। अब वो 5 साल से आरपी अगर चेंज हो रहे हैं, एक तो आप आरपी से डायरेक्ट फोन करके पता कर सकते हैं आरपी, या फिर वो तो प्रेजेंट आरपी जो है मेरे को मालूम है, वो तो अपडेट हम लोग के पास में आती है।
लेकिन ये मतलब एनसीएलटी का तो मतलब जैसे आपने पिछले में बोला कि जो भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी होती है वो पूरी प्री प्लान्ड होती है। जी। तो हाँ, तो वो मतलब उसका मतलब यही हुआ ना कि या तो मतलब पाने वाला चला जाएगा या तो लेने वाला चला जाएगा। कब ऑक्शन होगा उसका कोई नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरपी अपनी रिपोर्ट देता है। आप एनसीएलटी की साइट पे आप देख सकते हैं केस का स्टेटस, हियरिंग का स्टेटस आप हाँ देख सकते हैं। और वो कहीं भी उसने अपना आता है, प्रोफाइल, लेकिन कोई वैसा ऑर्डर नहीं आता है मतलब उसमें। वो 5 साल से तो मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट उसके अंदर प्रोसीडिंग्स में कुछ तो होता है। आरपी ने कोई प्लान आगे दिया होगा, हाँ। आगे या तो वो एक्सेप्ट किया होगा या रिजेक्ट किया होगा। कोई प्लान प्रपोज करते हैं, क्या स्टेटस चल रहा है, या फिर उन्होंने प्लान प्रपोज करके रखा है और किसी ने लिटिगेशन डाली होगी, जैसे आपने पैसे लेने कहीं औरों ने भी डाले होंगे, तो वो हाँ, क्या उनके केस रहता उन्होंने है। तो मतलब वो एक कंपनी से, ये तो एक कंपनी में है, वैसे तो उसके 31 कंपनी 31 कंपनी खोल के रखी हुई है। हाँ, नहीं, जैसे आपने उस कंपनी से पैसे लेने हैं वैसे किसी हाँ और ने भी पैसे लेने होते हैं। तो वो क्या हाँ है, उसके ऊपर लिटिगेशन कर देते हैं। तो इनिशियली हाँ जैसे आरपी ने कुछ कहा कि 1% मिलेगा हाँ अनसिक्योर्ड, बिकॉज हाँ पहले पेमेंट जो होती है वो पेमेंट होती है जो सिक्योर्ड क्रेडिट डेटर्स होते हाँ हाँ, बैंक पहले हैं। लेगी। क्रेडिटर्स होते हैं वो होते हैं बैंक्स हाँ जो हाँ। सिक्योर्ड होते हैं। तो सबसे हम्म पहली पेमेंट उनको जाती है जो भी एसेट्स वगैरह बेच के, उसके बाद हम्म सिक्योर्ड का आता है। बट इन हम्म केस अगर आप पहले चला दें कभी, क्योंकि आप इनिशिएट कर दिया कीजिए हमेशा आपके अपोजिट पार्टी, क्योंकि अगर आपकी फेवर की डिग्री आ गई एमएसएमई के थ्रू तो आप हाँ। सिक्योर क्रेडिटर बन जाते हैं। आप उनकी श्रेणी में आ जाते हैं, फिर इनसिक्योर्ड की श्रेणी में नहीं रहते। पर बिफोर बिफोर पब्लिक अनाउंसमेंट के पहले करे तो ना। हाँ, तब उससे पहले ही करें, बिकॉज एक बार अगर वो केस एक्सेप्ट हो जाता है एनसीएलटी के अंदर तो हाँ। कहीं भी कोई भी हियरिंग्स हो जाती हैं वो सारी की सारी रुक जाती हैं वहीं पे ही। ओके। और देन यू नीड टू वेट फॉर एक्चुअली रेजोल्यूशन प्लान क्या बन रहा है, क्या हाँ, एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा। उसमें फिर ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे इसको ये फ्लोट एनसीएलटी प्लेटफॉर्म अपना छोड़ ही दे, क्योंकि वहां तो कोई हॉप दिख ही नहीं रही है। और दिखे भी तो अपना मान लीजिए 1 करोड़ बाकी होगा तो 2-3 लाख रुपया भी आए तो बहुत बड़ी बात है। ट्रूली टेलिंग तो ऐसा ही कुछ होता है। वहां पे जान के लिंगर ऑन किया जाता है एक सिस्टमैटिक हाँ। तरीके से। कंपनी को जो है, किसी को अगर वो बहुत सारे लोन ले लेता है और वो सिस्टमैटिकली फिर अपने आप को इंसॉल्वेंट कर देता है और द थिंग्स गोज ऑन लाइक दिस। फिर उसके एसेट्स वगैरह सब, मतलब अब लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल। एक कंपनी है, उसने करीब 450 करोड़ का लोन लिया हुआ है पीएनबी से। एसेट्स हम्म। उसके हैं, और जिसने 450 करोड़ का सिर्फ पीएनबी से ही लिया हुआ है और हाँ रिसेंटली लिया है, उसके हाँ। एसेट्स जो है वो 60 करोड़ के बता रहे हैं। तो ओ। तो तो अब वो क्या है कि अब वो फिर क्या है, वो स्किप ट्रेसिंग एजेंसीज को हमें हायर करना पड़ता है, लगाना हम्म पड़ता है। फिर वो हम्म निकालते हैं कि इस कंपनी की ये एसेट है, एक्चुअली में इसकी वैल्यू ये है। 1 करोड़ हम्म का स्टॉक हम्म। पड़ा हुआ है, उसके 10 लाख का बता रहे हैं ये। तो नहीं, जैसे कि अपने एमएसएमई में ट्रेडर जा नहीं, मतलब अलाउड नहीं है, और एनसीएलटी का कोई हॉप नहीं है एनसीएलटी एज ऑन टुडे। एनसीएलटी एक्चुअली क्या है कि एनसीएलटी में सारी मोस्टली चीजें ना प्री प्लान टाइम सी। पासिंग प्लेटफॉर्म है, टाइम पासिंग प्लेटफॉर्म। टाइम पासिंग इन द सेंस, आपकी जो अपोजिट पार्टी है मोस्ट ऑफ द हाँ केसेस में हाँ वो हाँ उसको पता होता है कि उसने क्या करना है कितने टाइम बाद। तो हाँ वो सिस्टमैटिकली सबसे पैसा वैसा लेके, जब उसको हाँ। पता लगता है कि अब सहा नहीं जा रहा, और फिर वो एनसीएलटी में चली जाती है। हम्म। और उसके बाद जो अपने एसेट्स वगैरह हैं वो कम हाँ शो करके अपनी ही किसी सिस्टर कंसर्न को बेचती है। दिस इज हाँ। हाउ द मैटर, यू नो, हम्म। ग्राउंड रियलिटी तो यही है। बरोबर और इसके बरोबर। अंदर जो फिर आरपीस वगैरह हैं वो भी अच्छा, मतलब आप समझ सकते हैं। हाँ, वो लोग का भी तो, हाँ तो वो लोग वो तो पहले मतलब आएंगे, वो सबसे पहले में तो आरपीस वगैरह का चार्ज ही होता है। आरपी मतलब वो भी, देखिए वो भी सोच समझ के आगे चल रहे होते हैं ना। अब उनको भी पता होता है कि 1 करोड़ का अगर स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको अगर 10 लाख का दिखाना है
तो ये सारी एक तरीके की एक नेक्सस बन जाता है बिटवीन द कंपनी गेटिंग इंसॉल्वेंट एंड आरपी एंड द मनी और द कंपनी हु इज टेकिंग ओवर। तो एक थोड़ा भूल भुलैया वाला रास्ता है एनसीएलटी का। तो उसमें जैसे कि अपने जो एनसीएलटी में है, तो उसके ऊपर में फिर अपने कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से तो अपने इनिशिएट ले ही सकते हैं कि नहीं? नहीं सर, अगर एनसीएलटी इज अ एक्ट, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर उसके अंदर अगर केस चला गया है तो कहीं भी कोई भी केस होगा तो मतलब सारी जगह फ्रीज हो जाएगा। बट अगर वो कंपनी एनसीएलटी से बाहर हो गई, मतलब कि उसने कोई रेजोल्यूशन प्लान निकाल लिया या उसकी कोई सेटलमेंट हो गई बैंक से, अगर वो बाहर हो जाती है फिर इनिशिएटिव, फिर जो उसकी जो भी चल रही होती है, हियरिंग्स चल रही होती है, वो वहीं से स्टार्ट। तो मैंने क्रिमिनल केस या फ्रॉड केस कुछ भी नहीं लगा सकते उसके ऊपर? रिकवरी का तो एटलीस्ट नहीं लगा सकते आप। इंडिविजुअली आप किसी डायरेक्टर वगैरह पे अगर 420 वगैरह वही डायरेक्टर वगैरह के ऊपर इंडिविजुअल, हाँ, कंपनी के ऊपर में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट है, ये तो डिक्लेयर हो गया। तो डायरेक्टर के ऊपर में जी, वो फिर आप केस कैसे बना सकते हैं, वो आपको अपने एडवोकेट से एक बार बात करनी पड़ेगी। बराबर। ठीक, थैंक यू सर। Thank you, Chandresh ji. Can we have a other participant? Is it Dinesh ji who would like to ask, or we can have Rutuja Kulkarni, please? Please unmute yourself and you can ask your question, please. May I? Amit Jaswal here. May I? Hello. Yeah. Amit ji, probably next, let me ask Rutuja, please. Rutuja, yeah, please ask your question. Hello. Yes, please ask your question. जी बताएं। या Rutuja, please ask your question. दिनेश जी बोल रहे हैं। हाँ दिनेश जी, आप पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई भी कंपनी अगर है, थोड़ी आवाज आपकी थोड़ी सी क्लियर नहीं है, थोड़ा पास, थोड़ा स्पीकर के पास आके बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कंपनी के डायरेक्टर सारा होल्ड दिया को देखते हैं, कंपनी चल रही है, ठीक है? नॉट ऑडिबल, कुछ समझ नहीं आ रहा आप जो बोल रहे हैं, थोड़ा सा। मैम आपको समझ में आ रहा है? नहीं मनीष जी, आई कांट रीड हिज क्वेश्चन। दिनेश जी थोड़ा जगह चेंज करके स्पीकर से बोलिए प्लीज। आपकी आवाज या तो एको हो रही है और समझ नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप लिख के बता दीजिए जो आपको क्वेश्चन है, मैं उसमें ही फिर आंसर कर दूंगा, बिकॉज ऑडिबल नहीं है, अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही। Meanwhile, Rutuja, you can ask your question, please. Yes. Am I audible? Yes. Yeah, you are audible. Yeah. So I wanted to ask that we are the organization, we falls under MSME. We are a small entity. So as per what I understood is, as per MSME rules, we should receive the payment in 45 days. Is my understanding correct? Yeah, after 45 days, you are eligible for interest. Okay. So then if we are signing some contracts with our clients, then can we ask them to give us the payment strictly within 45 days? Because there are many clients who sign the contracts for 60 days. They have that cycle. But being the MSME, can we ask them to, as per rule, you should give us? Yeah, you can. Okay. You can. You can. Baki, it is up to your, personal, business relationship, how you want to maintain it. But if you are talking legally, you are very much able to receive interest after 45 days of raising the invoice or providing the goods and services, whichever is earlier. Okay. Yeah. Thank you so much. Okay.
Okay, can we have Vedehi? Vedehi, you can ask your question, please. Mr. Vedihi, your question is that you are not getting payment from SBI Bank. Anybody who can unmute Vedehi? Yeah, Vedehi is Hello. there. Yes, Vedehi, please answer, ask a question. Yeah, Mr. Vedi. Hello? Yeah, Miss Vedi. हेलो सर, गुड इवनिंग सर। वैदेही बात कर रही हूँ भारतीय फायर से। जी बताएं। एक्चुअली हम लोग मैन्युफैक्चरर है सर, फायर एक्सटिंग्विशर। ओके। और हम लोग का कैसे सर, मतलब यहाँ पे पैन इंडिया में अपना एसबीआई बैंक का हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला था रिगार्डिंग फायर एक्सटिंग्विशर सेल्स एंड सर्विसेज। तो हम लोगों ने वो ब्रांच में सेल्स किया है सर, सर्विसेज भी किया है, उनके काफी इनवॉइसेस भी है हमारे पास। हमने बैंक ब्रांच में भी इनवॉइस दिए हैं, बट उनकी एंड से सर लास्ट 3 ईयर से जो है वो पेमेंट हम लोग का है सर, वो क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब ब्रांच विजिट भी हो गया है सर, उनका जहाँ पे हेड ऑफिस है, एचओ वगैरह है, बीकेसी में भी उनका एक जो मेन ऑफिस है वहाँ पे भी हो गया है सर, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। आपको आपने एक ही पर्सनल विजिट भी हो गया है सर। ओके। तो हम इस पे क्या प्रोसेस कर सकते हैं सर, कुछ हेल्प कर सकते हैं सर आप? आपने इनवॉइस कब रेज किया था, मतलब कब दिया था आपने सर्विसेज वहां पे? 3 साल आप कह रहे हैं कि 3 साल हो गए आपको, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं? हाँ जी, हेलो हेलो। Vedehi, Manish ji is asking कि आपको इनवॉइस डाले हुए 3 साल से ज्यादा हो गए क्या? Vedehi? मैम, कैन यू हियर मी? हेलो। We are able to hear you. Can you hear us? हेलो, हाँ मैम, कैन यू हियर मी? हेलो। Yes, yes, we can hear you, please. हेलो। Vedehi, you are audible. What I'm asking is कि when did you raise the invoice? What was the date of the invoice which you have raised? आप कौन सी डेट, आप कितना टाइम हो गया आपको वो इनवॉइस रेज किए? हेलो जी मैम। हेलो मैम ऑडिबल? मैम आवाज आ रही है? I think you can answer her on the chat. She's also out of range, probably. Okay. Can we have somebody else? That is Vedehi Ahavad. Avad. Would you like to ask a question, or is it Yashwardhan ji? Hello. Please. Good evening, sir. This is Yashwardhan. Yashwardhan ji, please ask your question. Yeah, sir. I'm a third year BLLB student at ILS Law College, Pune, and recently I was interning at MSME Enterprise, particularly medium enterprise, under its legal department. And I wanted to talk about this very dilemmatic problem of this MSMED Act 2006. As we know, sir, this particular act has been passed for the fostering and development of MSME sector. Okay. But the most significant provision of this act, which is Section 18 of this act, MSCFC Council, it excludes medium enterprises from its ambit. So the condition of medium enterprises has become like a middle class person who do not even get the benefit of the government scheme. Also, they do not have that much influence on the machinery so that they can get their issue resolved enough fast manner. So this is something I wanted to I wanted you This to. is your question. Basically, you are saying that medium enterprise. See, if you are a medium enterprise, then your turnover will be more than 50 crores. So if your, if your invoice, if your turnover is more than 50 crores, then the government think that first of all, this particular law was made considering the fact that micro and small, the number of micro and small units are much more
than the medium enterprises in India. And the this financial constraint with micro and small to go for normal, litigation in court is much less as compared to the medium enterprises. Basically, एक माइक्रो और स्मॉल जिसकी 50 करोड़ से टर्नओवर नीचे, वो उसकी सक्षमता फाइनेंशियली भी इतना कैपेबल नहीं है वो कि वो वहां नॉर्मल कोर्ट में जा सके. मीडियम एंटरप्राइज इज हैविंग fully equipped because 50 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा है. Then they have their own legal team. They can go to court and recover the money because ये तो लॉ है. लॉ तो गवर्नमेंट ने बना दिया तो बना दिया, इसमें तो we don't have any control. But what we can seek is what is the rationale between any law which is being made. So the rationale which seems is that medium enterprise is financially much more stable, much more bigger as compared to micro and small. That is the reason they have excluded in this particularly MSME development and delayed payments. Correct, sir. Yes, sir. So that traditional way is always there for us. We know that, but still, I have also written an article on it. I'll be delighted if you review it personally. Okay. So I have tried to figure out some alternate ways, although they're not sure short ways to What the best alternate right now available is Order 37. If you are a big enterprise and you are dealing in a big way with having some big deal with transaction is big with opposite party, then go for promissory note or some contract or something basis on which you can initiate Order 37 summary suit. So if your legal team, the legal team of medium enterprise has a contract in such a way that that is sufficient for initiating Order 37 suit, that will serve the purpose for medium enterprises, because Order 37 case is for 3-4 hearings maximum. The gist I have given in my PPT. So I think the best resolution which is available for medium enterprises, Order 37, and try to change or add or delete invoices, agreements according to it. So you go straight away to court and decide your case within 3-4 hearings. That's it. It will be decided much more earlier than any other case, in fact much before MSME Act. Okay, sir, here the problem is there was no as such a contract. The business was done on personal terms, so that is why also the opposite company from very beginning were had intention to defraud our company. So can this also come under this corporate fraud wala thing, so that we can approach MCA and then ROC through it? So, see, that you need to see particularly what transactions is being made and what are the communication that has been done. So you need to go into specifications of this particular case to find the suitable case in which it can be lodged. okay. Thank you, Yashwardhan. I think sir has been able to answer your question. So can we have the other participant? And if you still like to get connected with him, we have pinned our number. Okay, you can get in touch and we can get you directly speak to him. Sorry, there's a constraint of time and we have some more people to be answered. Okay, thank you so much. Thank you, Yashwardhan. Thank you. Can we have Gulshan Kumar ji? Please ask your question, Gulshan ji. Please unmute and please ask your question, Gulshan ji.
Am I audible? Yes, please ask your question. Yes, Gulshan ji, please ask your question. Are you there, Gulshan Kumar ji? Amit ji, would you like to ask a question? You were waiting. If you want, you can ask the question now. Ma'am, good evening again. Good evening जी. एक्चुअली सोलार फील्ड से है एंड हम लोग टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तब क्या होता है ना, नोडल एजेंसी के साइड से आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है. अमित जी, आई थिंक आप कनेक्शन से थोड़ा दूर है, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. अभी ठीक है आवाज? अभी ठीक है. तो उसमें क्या हो रहा है ना, हम लोग जो एजेंसी के टेंडर्स फिल करते हैं, तो हम लोग में क्या होता है, हम लोग अपना पैसा लगाते हैं, फिर उस समय पे 2 साल 3 साल बीत जाते हैं, पूरा टेंडर कंप्लीट होने के बाद उन लोगों का कहना होता है कि अभी नहीं, हम पेमेंट नहीं कर सकते, फिर एंड ऑल हमें वो सब टलाना वगैरह, एंड वही उनका कहना है कि भी आप अपना पूरा मटेरियल उठा कर लेकर जाओ, इस टाइप से लोगों का कहना होता है. तो इस केस में हम कैसा करें डील इन लोगों से? आफ्टर ऑल उसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. इसके अंदर दो चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपनी पेमेंट्स को इतना ना डिले मत कीजिए, मतलब 3 साल तक वेट मत कीजिए. यू शुड हैव सम सर्टेन दिस थिंग कि 3 महीने 6 महीने बाद इतनी पेमेंट आनी चाहिए, अदरवाइज आप काम रोक दीजिए. और 3 साल तक तो आप वेट बिल्कुल मत कीजिए. एंड इफ और अगर मान लीजिए आपने कर दिया है और एक्सेप्टेंस इज देयर, यू हैव प्रोवाइडेड द थिंग्स, जो भी आपने काम करना है, और आई थिंक उसके अंदर कुछ एंट्री आपकी होती है कि ये आपका जो एक क्लोजर रिपोर्ट, एक रिपोर्ट होती होगी ना आपके पास, कहीं भी आप काम करते हैं तो साइट मैनेजर जो है वो उस पर लिख के देते हैं कि हाँ ये काम हुआ है इसके ऊपर, तो वो रिसीट्स आपके पास होती हैं. सो दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि आपने वहां पे काम किया है. ठीक है जी. और उन्होंने एक्सेप्ट किया, प्रूफ है हमारे पास में. फाइन, एक मिनट, लेट मी स्पीक. तो काम किए और उसका प्रूफ है, सेटिस्फैक्टरी है, और इन रिटर्न में उनका कुछ ऐसा आया नहीं कि आपके माल में दिक्कत है. 15 दिन के अंदर अंदर, उसके 15 दिन में आ गया, देन दैट इज डिफरेंट थिंग, और वो भी रिटर्न में आना चाहिए. अगर मान लीजिए नहीं आया, then you are very much eligible to file a complaint under under MSME Act. अब MSME Act के अंडर अगर आप ये करते हैं और अपोजिट पार्टी अगर आपकी गवर्नमेंट है, तो नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छी बात है. इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो आप जिससे आपने पैसा लेना है गवर्नमेंट सेक्टर से, वो अगर अपोजिट पार्टी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके जो डायरेक्टर है वहां तक जाती है ये, और फोर्टनाइटली पीएमओ ऑफिस के पास भी जाती है कि कितने कितने जो है एमएसएमईज का पैसा ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने रोक के रखा हुआ है. और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इट इज गुड, बिकॉज उनको एक्सप्लेनेशन देना बहुत मुश्किल होता है. तो इस केस के अंदर अगर आप एमएसएमई के थ्रू रूट के थ्रू जाते हैं, देन चांसेस आर वेरी वेरी हाई, बिकॉज इसके अंदर तो कंसिलेशन स्टेज पे ही अगर आपका जो काउंसिल है, आपकी एरिया का जो स्टेट का जो काउंसिल है, अगर वो प्रोएक्टिव है, जैसे मैं मेरठ की बात बताता हूँ, तो मेरठ में अभी हियरिंग थी, तो रेलवे थी मिनिस्ट्री या जो भी थी, तो उनमें जो काउंसिल मेंबर थे, तो उनको समझ में आ गया कि दैट इज बीइंग ड्यू, और वो डिलेइंग कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एंड ओपनली इज सेट कि आपके डायरेक्टर की जेब से पैसे निकलवाएंगे. तो this MSME Act is very strong, और in fact it is very very strong कि अगर आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अभी राइट नाउ जो मेरी रिसेंट इसरो के ऊपर हमने केस किया हुआ है, इसरो बैंगलोर पे, जो कि आप
वो रॉकेट भेजती हैं, आपने न्यूज में सुना होगा। तो 45 लाख्स मेरे क्लाइंट ने उनसे लेने थे और सॉफ्टवेयर उन्होंने प्रोवाइड किया था और 2022 नवंबर से ड्यू था एंड वो आ ही नहीं रहे थे। हमारी हियरिंग स्टार्ट हुई, पहली हियरिंग में नहीं आए, दूसरी हियरिंग में जैसे ही गया पूरा का पूरा उनका लीगल जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो वीसी से कनेक्ट हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट हुआ था और जो 1.5 साल से नहीं मांग रहे थे वो उन्होंने आते ही मान लिया कि उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम ट्रेनिंग आप हमारी दे दो और हम इसको वो कर देते हैं। देन अगेन उन्होंने सोचा ये ऐसे नहीं जाएगा, देन अगेन मेल मार्क हुई यहाँ से कि ये इस हियरिंग में डेट पे डिसाइड हुआ था। ये मैं अभी की बात बता रहा हूँ, इनफैक्ट आज ही मेरे को मेल आई है, इसरो की तरफ से भी मेल आई है कि इसरो ने ये सोचा कि अब ये हो गया, ऑर्डर नहीं निकलेगा, तो काउंसिल ने दोबारा ऑर्डर निकाला, उस मेल पे इसरो को इंस्ट्रक्ट किया कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप इसे वो नहीं करते तो हम ऑर्डर निकालेंगे। इमीडिएटली इसरो ने कहा कि हम ठीक है, हम ट्रेडिंग का आपको टाइम देते हैं, उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे। और अभी पेमेंट अभी इसरो से मेल आई है कि 13 अगस्त की जो डेट उन्होंने फाइनलाइज करी है, फ्राइडे तक कंफर्मेशन के लिए बोला है। तो जो 1.5 साल से इसरो नई बात कर रही थी, मेरे क्लाइंट ने 50 रिमाइंडर्स भेजे थे, वो वहां जाती दूसरी हियरिंग में और एमएसएमई की तरफ से जब जाते हैं उनको पता होता है कि हमारे डायरेक्टर के पास जाएगा और पीएमओ के पास जाएगा, वो फटाफट इसका निपटारा करते हैं। हेलो, यस सर। तो आपको मैंने लाइव एग्जांपल अपना भी दे दिया कि अगर आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एमएसएमई के थ्रू जा रहे हैं तो फिर आपके एडवांटेज है और सही तरीके से जाएंगे, सही अटॉर्नी होगी आपकी, मतलब सही एडवोकेट होगा आपका, तो थिंग्स विल मूव वेरी फास्ट। इसके अंदर लीगल नोटिस क्या बोलना है, बेसिकली आप अपने जो भी एडवोकेट या लीगल डिपार्टमेंट है उन्हें ये एश्योर करना ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप अपोजिट पार्टी से कम्युनिकेट करें तो उनको सारे लॉ बता के साथ साथ ये भी बता दो कि हम ठीक हैं और उनके लिए सारे रास्ते बंद हैं, कि ये कम्युनिकेशन हुई थी, हमारे पास ये प्रूफ्स हैं और इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है, आपके पास और कोई वे आउट नहीं है। तो अगर आप ये कम्युनिकेट कर देते हैं या अपने एडवोकेट के थ्रू ये करवा देते हैं, योर जॉब इज डन। We have pinned our details. If you like to contact Manish ji only, you can get in touch with him. If later also after the webinar you have any other queries or you would like to speak in detail with Manish ji, we can get you connected. Okay? Thank you. Thank you. Yeah, you can put in chat that you are interested. So our team will get in touch and we can get you connected with Manish ji again. So don't worry. This is for other participants also. If you are keen, you need more advice and a little more enlightenment on your problems, you can get in touch with Manish ji. We have pinned our number and email ID also. So maybe you can just put in chat if you are interested, or later you can get in touch and we will get our team connected. Do we have some other questions? Manish, you can run through some questions in the chat if we are left with, or probably if we can have Gulshan Kumar ji unmuted and he wanted to ask a question. Gulshan Kumar ji, would you like to ask a question? You can unmute yourself, please. By the time, I would like to add one thing, that our legal firm is purely dealing with this, and as already told that in our YouTube, only A to Z, whatever query is there, in my YouTube, it is very much there, and we have recent judgments in our favor from different councils that is being allotted to us. तो जो रिसेंट मैटर्स हमारे रिजर्व हुए हैं वो हमारे नाम किए हैं, जो पार्टीज किए हैं तो हमारे रिसेंट है, तो हमने we have gone through all the प्रोसेस ऑफ MSME स्पेशली। तो MSME के सारे प्रोसेस से क्या किस टाइम पे होता है, व्हाट आर द चैलेंजेस, कहाँ केस अटकता है क्या नहीं,
because we are dealing only with this. So any such query pertaining to anything, you can have, you can answer, you can question on this podium. Yeah, I would like to also add that I think we are blessed that we've been connected with the, the man who's the expert in only this field only, which is the key bone of any business. Like wherever we don't have a payment, we can't move forward. So he's the man today. So I would request each one of you, wherever you feel that you are still stuck and you want to have a consultation or you want to, talk to him. Sir has also shared his own experiences, and he's also mentioned that, he's been helping and trying to guide people through his YouTube videos also. So you can go and check, probably few of the answers are there. And still, I would say that, just a 1 hour or 1.5 hour guidance, if it's not enough and it has not answered you, you still need some motivation, please get connected. We'll help you connect with him. And he's always there. He's answering all of you. You can see how humble he is. So he will be there to, assist you in any of your problem, and probably you will have the way out. By the time someone is, connected, I'll just reiterate my YouTube channel, what all things are there. I have in length discussed the case laws decided on certain matters. मतलब आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम कहीं भी आप स्टक हैं और आपको केस लॉ की रेफरेंस चाहिए कि ये केस में क्या डिसाइडेड हुआ था, उसका रेफरेंस है, दैट इज वेरी मच देयर on our YouTube channel, and our motive is to get your money back. And again, it is very important, एक और चीज कि अपने क्लाइंट को, अपोजिट क्लाइंट को हर चीज बताना जरूरी है. This way or the other, you should let your other party know that you have lodged complaint in that particular Samadhan portal, MSME Act. And these are the provisions of particular act. देखिए, अगर आप अपनी अपोजिट पार्टी को बता देते हैं कि ये लॉज हैं ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर और ये केस लॉज हैं जो डिसाइडेड है और हमने आपकी कंप्लेंट कर दी, आपके पास ये रास्ता नहीं, प्लस उसके अगर आप सोच रहे हैं कि पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा, तो उसके आगे भी लॉज होते हैं कि उसकी जो एसेट्स हैं वो उसको रियलाइज किया जाता है, उसकी कुर्की क्या कहते हैं उसको, उसकी ऑक्शन होती है, उसके बैंक अकाउंट अटैच होता है. तो एवरीथिंग इज देयर इन लॉ, जो कि आपकी अपोजिट पार्टी को बताना बहुत जरूरी है. तो हमारे 40 to 60% जो केसेस हैं वो इसी लेवल पे सेटल हो जाती हैं व्हेन वी मेक श्योर दैट अदर पार्टी नोज दैट, एंड कि उस जो अपोजिट पार्टी है उसको कोई मिसगाइड नहीं कर पाता कोई एडवोकेट. अब होता क्या है कि आपने आधी अधूरी चीज दे दी, कंप्लेंट कर दी, अब वो जाएगा किसी एडवोकेट के पास, अब उसका एडवोकेट जो है उसको घुमा देगा, हाँ हम इसको ऐसे घुमा देंगे वैसे घुमा देंगे. लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप अपनी अपोजिट पार्टी को अपने लेटर हेड पे या अपने वकील के लेटर हेड पे बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर क्लियर कर दो क्या लॉ कहता है, क्या केस डिसाइडेड है. भाई तू इंग्लिश में पढ़ ले अच्छे से और किसी भी एडवोकेट से बात कर ले, इसका कोई तोड़ नहीं. दिस इज हाउ यू कैन क्रैक योर डील, और आपका पैसा जो है वो शॉर्ट पैसा वापस आता है. और ये हमारा एक्सपीरियंस है, मतलब 40 to 60% हमारा आर्बिट्रेशन जाने से पहले ही पैसा वापस आ जाता है, बिकॉज वी मेक श्योर कि हमारा जो अपोजिट पार्टी है उसको हर एक चीज की नॉलेज हो जाए कि ये लॉ है और ये उससे बच नहीं सकता. दिस इज द क्रक्स ऑफ मनी रिकवरी, whether you take MSME, whether you take check bounce, or whether you take order 37. Half of your battle is won the moment you tell your opposite party कि आपके पास कोई way out नहीं है, we are on the strong foot. And keep your evidences in line, जो कि है आपकी communication, आपकी invoices,
the way you communicate, आपके पास WhatsApp है, WhatsApp is very much acceptable as a evidence. या email है, your case becomes very easy. और believe me, आपको लगता होगा कि पैसा जो है आता नहीं है आसानी से, सही तरीके से आ जाता है. हम हमारा डे नाइट ये एक्सपीरियंस है. So any further questions? Am I audible? I request once again. Yeah, please. Yeah. Any other question? Fine, ma'am. You can take over and tell whosoever is interested for questioning. Otherwise, we can call a day off. Yeah, as there is a very famous saying that every day holds the possibility of a miracle. So, we must just keep going. And today, I would personally extend my gratitude to our guest speaker, Manish ji, for being there with us. And actually, I feel so empowered and enlightened. Like you must have seen, there are so many possibilities he has shown us, and he has also given us awareness about what all documents, if we have. So we have a possibility to get back our money, right? So I again, on behalf of my Udmita team, I would like to tell you, since we are come to the end of this incredible event, we hope we leave you enlightened with your rights and motivated with the changes required to keep your business flow safely. Okay, so let's continue to use this knowledge that we have gained through Manish ji, who has mentored us to our journey to success. So anybody, I would request again, would like to get in touch with Manish ji, you're more than welcome. We have pinned a number. We have mentioned our email ID. So please get in touch to us, and we will get our team, get you connected to Manish ji. He himself is an advocate, and you have seen how much knowledge he has. And just being a good human being, he's also posting videos so that, it can help somebody in some way. So anyhow, he's taken up this goal to help people and not get stuck. You must have seen that he mentioned his own story. He shared with us that how he had got stuck in life and how he has empowered himself with all the knowledge and expertise now, which he's utilizing it to help others. Okay. So for any queries and questions, do get in touch. And so again, I would say thank you so much, Manish ji, for mentoring us today. Thanks, ma'am. Thank you so much. And hope to see you all again. And do mention in your comments if there's anything else. If there is anything else you would like to know on the topic, or there's anything else we can help you out with. Thank you so much. Thank you, Manish ji, on behalf of each one of us present here. Thank you so much for joining us. God bless you all. Have a nice day. Bye. Thank you. Thank you to all the participants. Thank you for being such wonderful audiences. Thank you. Thank you.